خود میرا حلقہ کل میں نے ٹویٹ بھی کیا اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے. میں ایک پارٹی کا اپنی جماعت کا ایک پیٹنٹ کارکن تو ہوں نا. تو 18 میں میرے حلقے کے 3 حصے کیے گئے تھے عمران خان کو جتوانے, اور والٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی 10 وارڈیں ہیں. آپ جو سارے لاہور کے لوگ ہیں, ایک کینٹونمنٹ بورڈ میں قومی اسمبلی کے 4 حلقے ڈال دیے ہیں, ٹکڑے کر دیے اس کے چھوٹے چھوٹے. تو میں اس پہ الیکشن کمیشن میں گیا ہوں, ہماری بات ہی نہیں سنی گئی. ہم نے لاجک دیا ہمارے وکیل نے وہاں پہ, ابھی ہم ہائی کورٹ میں آج چیلنج ابھی کر دیا ہوگا میرے وکیل صاحب نے. اسی طرح جو ملک سیف کھوکھر صاحب ہیں صدر لاہور, جن کے آفس میں موجود ہیں, ان کا حلقہ بھی برباد ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب کے حلقے کا عالم یہ ہے, وہ تو بولتے نہیں ہیں. شہباز صاحب کا حلقہ بھی اپسیٹ ہوا ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, میں یہ اسٹیٹمنٹ پوری ذمہ داری سے دے رہا ہوں. تو باقی تو بات ہی کیا کریں ہم. تو الیکشن ہے, اس میں ہی ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اب الیکشن کمیشن کو ہم اپروچ تو نہیں کر سکتے. وہاں جو لوگ حلقہ بندیاں کر رہے ہیں انہوں نے کچھ سوچا ہوگا, لیکن وہ جو ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے ہمارا اس سے اتفاق بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے. اسی لیے ہم عدالت میں جا رہے ہیں نا جی. اچھا خواجہ صاحب بتائیے گا کہ آپ نے جیسے بھی بتایا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ امیدواروں کی انٹرویوز کر رہی ہے, باقی پارٹیز نے ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں کیا, تو اتنے ٹھنڈے الیکشن کا ماحول ابھی تک کیوں نہیں بن سکا؟ یہ 2023 کے جو الیکشن ہے ابھی اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں, اور یہ چیم گوئیاں کیوں ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں عین وقت پہ نہیں ہونے, حالانکہ سپریم کورٹ کا بھی حکم ہے, پھر بھی اس طرح کی افواہیں کون پھیلا رہے ہیں؟ 2 سوال کیے ہیں آپ نے ایک سوال میں, ایسے ہی کتنے کیے ہیں سوال ایک سوال میں؟ اوکے. ایک آپ نے سوال کیا کہ الیکشن ٹھنڈے کیوں ہیں. الیکشن گرم ہوں گے جب الیکشن شیڈول آئے گا, کیونکہ ابھی حلقہ بندیوں کے مسائل چل رہے ہیں, تو کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس نے کہاں سے لڑنا ہے. دوسرے جماعتیں اپنے اپنے انداز میں اپنے امیدوار فائنل کر رہی ہیں. ہمارا یہ اندازہ جو ہم روز آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں, آپ کے ذریعے قوم کو بتاتے ہیں, تو جو ہی الیکشن شیڈول آئے گا اور پیپر فائل ہونے شروع ہوں گے تو ایک دم گہما گہمی شروع ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا آپ نے افواہیں. دیکھیں ہمیشہ کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ ان آؤٹ, جن کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر کریٹ ہو. تو یہ شوشے چھوڑے گئے ہیں میرا خیال ہے, لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی تو اس کو سپورٹ نہیں کرتی, اور میرا نہیں خیال کہ ان شوشوں کا الیکشن کمیشن پہ کوئی اثر ہوگا یا اور کسی پہ کوئی اثر ہوگا. الیکشن 8 فروری کو یہ ہونا چاہیے, 1 سیکنڈ, 8 فروری ہی کو ہونا چاہیے, 1 گھنٹہ بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں آگے مسائل ہیں. ایک تو سینٹ کا الیکشن ہے, تو سینٹ کا الیکشن مارچ میں ہے, میرا خیال ہے 1 یا 2 ویک میں ہے. تو اگر آپ 8 فروری کو الیکٹورل پروسیس پورا نہیں کرتے تو آگے گورنمنٹ کی فارمیشن ہونی ہے, لوگوں نے اوتھ لینے ہیں, کئی جگہ پہ پٹیشنز آئیں گی, تو پھر سینٹ کیسے مکمل کریں گے. ایک دوسرے, جہاں سے پاکستان جس جگہ سے گزر رہا ہے, ایک انٹرم ریلیف تو ہمیں مل گیا ہے, آئی ایم ایف سے ہم نے معاہدہ کر لیا ایک وقتی طور پہ, لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. سو جب تک کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آتی عوام کے مینڈیٹ سے اور عوام کے ریزنیبل مینڈیٹ سے, تو آپ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے ادروائز. سو یہ منتخب لوگوں کا کام ہے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے کہ وہ لیجسلیشن کریں, وہ پالیسی میکنگ کریں, پھر عالمی ادارے بھی اس کو سیریسلی لیتے ہیں. سو ریاست کے لارجر انٹرسٹ میں یہ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن 8 ہی کو ہو انشاءاللہ تعالی, اور اس میں 1 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں, یہ اس کا حصہ ہے سارا. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ننکانہ صاحب کے انٹرویو چلتے ہیں, تو ننکانہ صاحب کا بڑا نام ہے برجیت طاہر صاحب, وہ آج نظر نہیں آ رہے, کیا وہ آپ؟ برجیت طاہر صاحب ہیں, کل رات چلے گئے تھے اسلام آباد, آج ہے میاں نواز شریف صاحب کی وہاں پہ کورٹ ہیئرنگ. تو برجیت بھائی جو ہیں وہ کورٹ ہیئرنگ پہ ہیں, انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا, تو میں نے ان سے تفصیلی بات آج صبح کر لی تھی. باقی ان کی ساری ٹیم یہاں موجود ہیں. فائز صاحب یہ بتائیے گا کہ طلبہ, آپ بھی طلبہ اسٹوڈنٹ سے آپ کا آغاز ہے سیاست کا, تو اس حوالے سے ایک طویل عرصے سے طلبہ تنظیموں کو پابندیاں ہیں, تو یہ ہٹنی چاہیے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ اور آپ کے خاندان کی جمہوریت کے لیے بے شمار قربانیاں تھیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی میں الیکٹیبلز جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, یہ وہی الیکٹیبلز ہیں جو آپ کی پارٹی کو متعدد بار چھوڑ چکے ہیں, تو جمہوریت کا فکر کیا ہوگا؟ اب یہ آپ نے 2 سوال بالکل ایک دوسرے سے مختلف کر دیے ہیں ایک ہی سانس میں. اب پہلے مجھے بتائیں کس کا جواب دینا ہے, کدھا جواب دینا ہے دوستوں؟ نہیں دونوں ہی دیں گے ایک ایک کر کے, میں بھول جاؤں تو تسی یاد کرانا ہے. جہاں تک طالب علم تنظیموں کی بحالی, اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کا تعلق ہے, اسٹوڈنٹ یونین ضرور بحال ہونی چاہیے, لیکن سرٹن کنڈیشنز کے اندر, یہ میری ذاتی رائے ہے.
मैं इस वक्त अब पार्टी राय नहीं दे रहा, क्योंकि ये काम मैंने अपने हाथ से किया है, इसके फ़वाइद और इसके नुकसानात दोनों को देखा भी है, भुगता भी है। तो अगर स्टूडेंट यूनियंस को आपने बहाल करना है तो ज़रूर करें, लेकिन एक बड़ा सख्त स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, और किसी गैर तालिब इल्म को स्टूडेंट पॉलिटिक्स की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो तलबा तंजीमें हैं, मैं खुद एक तलबा तंजीम मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी, उसको लीड किया, खड़ा किया। इनकी जो अटैचमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो असूलन तो उसका फ़ायदा होना चाहिए, उसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है। मैंने ये महसूस किया, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये क्यों होते हैं? अब कोई कहे जी कोई और कराता है, तो नहीं, ये हम खुद ही करते हैं। उसकी वजह ये है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी अभी वो लेवल ही नहीं आया है इस मुल्क में। छोटे छोटे लड़के होते हैं, वो अपनी हेजेमनी के लिए और अथॉरिटी के लिए लड़ पड़ते हैं आपस में, उससे तालीमी अमन तबाह और बर्बाद हो जाता है। कोई इस मुल्क में ये नहीं कह सकती स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग उसमें जिसमें मैं था, कि हमने बड़ी को कार खैर करके तो जिस तालीमी अमन बहाल किया और बड़ा। सो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हमारे बच्चे पढ़ें और पढ़ लिख के वो अपनी फैमिलीज़ को अपलिफ्ट करें और मुल्क को आगे लेके जाएं। लेकिन तालिब इल्म यूनियन जो है उनके ख़त्म होने का नुकसान ये हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर सियासी कारकुन जो है उनकी नर्सरी बनना तकरीबन बंद हो गई है। दो फंडामेंटल अदारे हैं, एक लोकल बॉडीज़, बदकिस्मती से हम उस पर तवज्जो नहीं देते। जब जिसकी हुकूमत आती है वो चाहता है कि इसके तो इख्तियारात सलब करो ना, और MP MNA को एम्पावर करो, ये नहीं होना चाहिए। सो इस बार हमारे मंशूर में एक तो ये है कि हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे फोकस कर रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट को मजबूत कर रहे हैं, और MKM भी यही चाह रही है और हम भी ये चाहते हैं कि आइन के अंदर बल्दियाती इदारों को तहफ़्फ़ुज़ दें, ताकि कोई आने वाली हुकूमत उनके साथ अपनी मर्ज़ी से खेल ना करे। और इसी तरह जो स्टूडेंट यूनियंस हैं वो बहाल होनी चाहिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए। जो तालीमी इदारों के सरबराह हैं, कुछ वाइस चांसलर्स की कमेटी बनाएं, पहले भी बहुत काम हो चुका है, और उसको कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इसके पीछे मौजूद है ना, ये इतना आसान नहीं है। तो उसको फिर आप पार्लियामेंट में लेके आएँ बहस करके, तो फिर आप उसकी इजाज़त दें और फिर उस पर सब अमल दरामद करें। और तीसरी आपने बात किया इलेक्टेबल्स की, ये बात यह है जी कि पाकिस्तान में ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिसमें 4 मार्शल लॉ लगे हैं, 5वां नकाब पुश मार्शल लॉ था। अब ये हुआ ये है कि एक तो मार्शल लॉ की वजह से बड़ी ख़राबी हुई है, एक सियासी जमातों ने भी आबियारी नहीं की है, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा नहीं किया, जिसकी सज़ा भी उन्होंने भुगती है और फिर कीमत भी अदा हम करते हैं। नतीजा ये होता है फिर आपको इलेक्टेबल्स पे तवक्कल करना पड़ता है। अगर आप अपनी जमातों को मुनज़्ज़म करें, ग्रास रूट लेवल तक अपनी स्ट्रीट पावर को मुनज़्ज़म करें, आपकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगी तो ये जो दायरे का सफ़र है ये फिर मुश्किल हो जाएगा इसको ख़त्म करना। ये मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है। भाई साहब ये बताइएगा कि हमारे सामने आपका सफ़र है, जो सूरत-ए-हाल 2002 में मुस्लिम लीग नून को दरपेश थी, इस वक्त पाकिस्तान की साबका हुक्मरान जमात को सेम वही सूरत-ए-हाल दरपेश है, और आप खुद सियासी कारकुन रहे हैं और बहुत नीचे से सफ़र करके आए हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में जो इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, उस पर अभी से कई सवालिया निशान लग रहे हैं। क्या आपका बहैसियत ख्वाजा साद रफ़ीक की ओपिनियन है कि तमाम सियासी जमातों को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दें, खास नताइज कुछ भी है? ख्वाजा साहब, बड़ा आपने अहम सवाल किया है। मेरे जो ज़ाती ख्यालात हैं वो आपको सबों को पता ही है। 2002 को और 2024 को आप कंपेयर कर नहीं सकते मेरे ख्याल में। 2002 में एक 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी जो 99 में टॉपल हुई थी, जब जिसके बाद 2002 का इलेक्शन आया। मुल्क में डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ नाफिज था, मुल्क में कोई जमहूरी अदारा मौजूद नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, PCO आ चुका था, LFO आ चुका था, यानी इलीगल ऑर्डर्स थे। अदालतें जो थीं वो भी पाबा जंजीर थी, पूरी तरह कोई आवाज़ ही नहीं थी। और उसमें हमने इलेक्शन लड़ा, हमें 20 सीटें मिली, 2/3 मेजॉरिटी से 20। एक साहब भाग गए महीने बाद ही, पीछे रह गए 19। हाशमी साहब जेल चले गए, पीछे रह गए 18। उन 18 के साथ हमने ना धरना दिया सियासी ताकत के बावजूद, ना हमने इस्तीफ़े दिए, हमने उसी असेंबली के अंदर बैठ के फेस किया। ठीक है, फिर एक दिन हमारी वापसी हो गई, तो वापसी तो हो जाती है। अब ये जो सिनेरियो बना है,
9 मई के बाद ये सिनेरियो हमने तो नहीं बनाया. हमने तो खान साहब को मशवरा नहीं दिया था कि आप बहरान पैदा करने के लिए अपनी हुकूमतें तोड़ दें. हमने उनको मशवरा नहीं दिया था कि वो कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दें बहरान पैदा करने के लिए, सिर्फ कि क्राइसिस आ जाए. हमने तो नहीं उनको कहा था कि आप 9 मई करें. अब 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस हैं वो उनके लीडर्स, उनके तो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं. अब अगर आज आप कहते हैं जी ये मुस्लिम लीग नून ने कराया तो लोग हंसते हैं उनकी इस बात पे कि ये होल्ड ऑन, वो हंसते हैं लोग इस बात पे कि ये क्या कह रहे हैं. आपके ब्रांडेड लोग, आपके नुमायां लोग जो हैं, कोई अंदर मौजूद है, कोई बाहर मौजूद है. हमने भी मार्शल लॉ भुगते हैं, बहुत भुगते हैं, बड़ी मार खाई है, फिजिकल टॉर्चर भी बर्दाश्त किया, सबको पता है. तो हम तो इस तरह की हमने कोई हरकत नहीं की. हमने तमीज़ किया मार्शल लॉ क्या है और पाकिस्तान की फ़ौज क्या है, उसमें तमीज़ करनी चाहिए ना. यहाँ तो तमीज़ ही कोई नहीं है. अगर आप मुझे ले आएँ और गोद में उठा लें तो हर चीज़ जायज़ है, और अगर गोद से रख दें और कहें इम्पार्शल हैं आप जाने और सियासतदान जाने, तो आप मीर जाफ़र और मीर सादक बना देते हैं. ऐसा ही हुआ है. अब ये एक पहलू ये है, एक पहलू और भी है. वो सियासी खान साहब जो है ना, उन्होंने सियासी बरादरी से अपना नाता नहीं बनाया. सियासी बरादरी होती है, आप इख्तलाफ भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल नॉर्म्स के लिए इकट्ठे भी होते हैं. ये एक अनोखा लाडला था. वो कहता था मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, मैं ऊपर से उतरा हुआ कोई उतार हूँ, मैं ही रूल करूँगा, मैं ही मुल्क की सियासत के फैसले करूँगा, बाकी सारे जो हैं वो इररिलेवेंट हैं, बाकी सारे चोर हैं. चोर कहता था ना. अब आप चोरों से तवक्को करते हैं कि वो जाके आपके साथ खड़े हो जाएं. आपने किसी को इस काबिल छोड़ा है कि कोई आपके साथ गलती से भी हमदर्दी करे, कोई घर माफ़ किया हो, कोई जमात माफ़ की हो. आप तो फ़िरौन थे अपने वक्त के. अब आप अपने किए में फंसे हुए हैं, हमने नहीं फंसाया आपको, फिर आपने 9 मई कर दिया. तो बात यह है कि हमने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े हैं, कभी जेल में, कभी जलावतनी में. उनकी पार्टी को लड़ना चाहिए, उन्हें बायकॉट नहीं करना चाहिए. हम उन्हें ये मशवरा देंगे कि वो इलेक्शन लड़ें, क्योंकि पीपीपी ने बायकॉट किया था तो पीपल्स पार्टी पीछे रह गई थी. फिर एक वक्त में 2008 में हमारी पार्टी लीडरशिप सोच रही थी बायकॉट करने का, तो सियासी बरादरी ने कहा बायकॉट नहीं करना. याद है आपको वो दिन? हमने नहीं किया. रिजल्टेंट ने हमारी 81 सीटें आई नेशनल असेंबली में, जिसके बाद हमने 3-4 महीने की एक पीपीपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई. फिर वो जजिस तहरीक की वजह से हम बाहर आ गए. तो अब पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए, उन्हें बिल्कुल बाइकआउट नहीं करना चाहिए, और उन्हें अपने जो भी उनके वोटर हैं उनकी तवक्कुआत पूरी करनी चाहिए. हमें अपने वोटर की करनी चाहिए. फिर जब नई असेंबली बनेगी तो नई सियासत शुरू होगी उसके अंदर. हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई जमात सियासी इंतखाबी अमल से बाहर रहे. मेरा ख्याल है क्लियर हो गई है बात. जी अब इनको मौका है. बताएं कि एक जमात है जिसके वोट बैंक ने सबको परेशान किया हुआ, और हमसे बेहतर आप जानते हैं सियासी कारकुन है, उसका वोट बैंक है सोशल मीडिया पर जो नौजवान है और जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है. आप टिकटों के लिए इंटरव्यू बना रहे हैं, आपकी जमात ने कितने फीसद नौजवानों के लिए टिकट का कोटा रखा है पूरे पाकिस्तान में? पहली बात यह है कि जी परेशानी कोई नहीं है ना. तो ये पहला इलेक्शन है, तो क्या कहते हैं 100 पुश्त से है पेश आया पा सिपागरी, तो कोई नया काम थोड़े कर रहे हैं. बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े हैं. पता था जेल सामने नज़र आ रही थी कि इसके बाद जेल जाना है, फिर भी हम सब ने इलेक्शन लड़े हैं. इलेक्शन कम था, जंग ज़्यादा थी, लड़ी है. कभी आप जीत जाते हैं, कभी आप हार जाते हैं. हारने से भी कोई मौत वाक़या नहीं हो जाती, आप पॉलिटिकली ज़िंदा ही रहते हैं. एक तो ये बात है. सोशल मीडिया पे जो गालियाँ हैं, जो तुम्हार बांधा जाता है, वो गली में नहीं है, गली और तरह से है. जो गली का रहने वाला है, जो गली का रहने वाला है, वो कैमरामैन हजरात ज़रा, सर आपकी आवाज़ माइकों में आ रही है. मुझे पता माइकों में आ रही है, ये भी पता कि मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, लेकिन मेरा ये भी जिम्मेदारी है. नहीं प्लीज़ मत बोलें, एक आदमी बोले, वो सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा, आपस में बाद में बात कर लें. तो गुजारिश ये है कि ये जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने पिछले 15-16 साल सिर्फ इन्वेस्ट किया है ट्विटर पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे. हमने नहीं किया. हम उस दौड़ में ज़रा पीछे रह गए थे. वहाँ पे अब उनके पास महारत है झूठ को सच करके दिखाने की, वो महारत किसी और को दस्तयाब नहीं है. तो उन्हें आप इलेक्शन लड़ने दें ट्विटर पे और फेसबुक के ऊपर. हम गलियों में और खेतों में और देहातों में और शहरों में और बस्तियों में इलेक्शन लड़ेंगे, रिजल्ट सामने आ जाएगा. ये बात लाहौर से देख रहे हैं, लारकाना से देख रहे हैं. जी.
पिक्चर आप देख रहे हैं सारा, लाहौर में सीट एडजस्टमेंट का क्या फार्मूला होगा? अलीम खान या शुएब सिद्दीकी को कहीं से मौका मिलेगा इलेक्शन लड़ने का? अच्छा, ये भी बात ज़ेर बहस आई नहीं है, सच्ची बात है मेरे सामने। तो जब ये बात क़यादत के सामने आएगी, अभी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी इस पर बातचीत नहीं हुई, लाहौर सतह पे भी अभी किसी ने कोई बात नहीं की है। तो अगर कोई दोस्त बात करेगा या कोई डिज़ायर करेगा, सियासी अमल है, बात तो करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इलेक्शन गर्म होंगे। ननकाना की सूबाई और कौमी असम्बली उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए, 1 घंटा भी ताख़ीर ना हो। इलेक्शन के खिलाफ कुछ शोशे छोड़े जा रहे हैं, नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत में जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं है। हल्का बंदी में शहबाज शरीफ का हल्का भी अपसेट हुआ है। बानी सरबराह को बहरान पैदा करने का मशवरा हमने तो नहीं दिया था। किसी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं देखना चाहते हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इलेक्शन गर्म होंगे। ननकाना के सूबाई और कौमी असम्बली उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए, जबकि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए, 1 घंटा भी ताख़ीर ना हो। साद रफीक ने मजीद कहा कि इलेक्शन के खिलाफ कुछ शोशे छोड़े जा रहे हैं, नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत में जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं है। हल्का बंदी में शहबाज शरीफ का हल्का भी अपसेट हुआ है। बानी सरबराह को बहरान पैदा करने का मशवरा हमने तो नहीं दिया था। किसी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात हैं, ऐसे हालात के अंदर इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए और इलेक्शन को 8 फरवरी को ही होता हुआ देख रहे हैं और तमाम सियासी जमातों को भी एक पेज पर होना चाहिए। इलेक्शन जो है बर वक्त होंगे तो ही मुल्क के हालात बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। इलेक्शन के खिलाफ कुछ शोशे छोड़े जा रहे हैं, नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत में जा रहे हैं।